Hello everyone, and today we are going to discuss the format of question paper of cost and management accountancy and financial management, that is the cost FM paper. So this was the format of model examinations of CMA Inter cost FM paper. So basically section 1 was as usual of MCQ and it was of 14 marks, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक ट्रू एंड फॉल्स था, 5 से 10 तक MCQ था एंड 11 से 14 तक मैच द फॉलोइंग था, और ये सारा कुछ MCQ फॉर्मेट में ही था. So this was all about the section number 1. Now section number 2 is of, again this is of 12 marks and this was a choice based question. So you have to attempt either question number 15 to 20 or 21 to 21, that is either theory or practical part. So 15 to 17 was of marginal costing, which was of again MCQ in MCQ format, that is 2 plus 2 plus 2, 3 questions were there of 2 marks each. Then again question number 18 to 20 was of again of marginal costing, that is of 2 plus 2 plus 2, that is 3 questions of 2 marks each. So you have to attempt either these two questions or question number 21 and 22. So these were basically of theory types. So question number 21 was various types of functional budgets, and 22 was discussed the main objectives of introduction of cost and management accounting system in manufacturing organization. So the questions might change. It is not necessary that the same questions will come again and again. So you have to prepare accordingly. Now section number 3 is objective based, that is यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं है, ठीक है. यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल दीज. तो क्वेश्चन नंबर 23 से 25 बेसिकली था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से. इनमें भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से ही रहा क्योंकि इससे हर बार आता है. स्टैंडर्ड, मार्जिनल एंड बजट से हर टर्म में आया है और आएगा, ठीक है. तो ये तीनों चैप्टर्स यू हैव टू डू रियली वेरी वेल. सो 23 to 25 वाज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और इसमें मटेरियल वेरिएंस आया था, ठीक है. वो भी MCQ फॉर्मेट में आया था. सो 3 क्वेश्चंस वर देयर ऑफ 2 मार्क्स ईच. एंड देन 26 to 28 वाज ऑफ वेरिएंस कॉस्टिंग. इसमें आया था फिक्स्ड ओवरहेड, तो ये भी वैसे ही था. 3 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच. सो टुगेदर इट कंस्टिट्यूट्स 12 मार्क्स ऑफ सेक्शन नंबर 3. नाउ सेक्शन नंबर 4, विच इज़ द लास्ट सेक्शन ऑफ आवर फर्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज कॉस्ट. सो इसमें बेसिकली हर टाइम आता ये शॉर्ट नोट्स. इस बार भी शॉर्ट नोट्स था, बट मॉडल एग्जामिनेशन में ना 3 ही क्वेश्चन था और सारा ही अटेम्प्ट करना था. बट मेन वाले एग्जाम में 4 क्वेश्चन दिया था, उसमें आउट ऑफ 3 मतलब इंटरनल चॉइस भी था मेन वाले एग्जाम में. सो ये मॉडल एग्जामिनेशन का, तो इसमें 29, 30 एंड 31 बस 3 ही क्वेश्चन था. सो क्वेश्चन नंबर 29 वॉज प्रॉफिट, एक्सप्लेन द प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, and then it was explained zero based budgeting and then the limitations of uniform costing. So this was all about the cost part. Now let us come to the FM part, that is the financial management part. So now financial management में भी questions का patterns काफ़ी similar रहता है, ठीक है, costing से. So section number 5 was of 14 marks, that is MCQ. All the MCQs were here. So 32 से 35 था मैच द फॉलोइंग, 36 से 39 ट्रू एंड फॉल्स, 40 से 45 था MCQ. और ये मैच द फॉलोइंग, ट्रू एंड फॉल्स, ये सारा भी MCQ फॉर्मेट में ही था, ठीक है. नाउ सेक्शन नंबर 6 विच इज़ ऑफ 12 मार्क्स एंड ये चॉइस बेस्ड क्वेश्चन रहता है, ठीक है. अब 46 to 48 was of cash flow, in which there were 3 questions of 2 marks each. And then 49 to 51 was a question related to the credit policy, and this was also 3 questions of 2 marks each. So together 6 plus 6 constitutes the 12 marks of section number 6. So you can do either 46 to 51, or if you have done with your theory part, then 52 to 53 you have to do. So these are basically theory part. So I don't think many of you might have been preparing for theory, so you can attempt easily this practical part. वैसे theory में questions easy आता है, but you have to read all the chapters thoroughly. So 52 में क्या था, basic propositions and limitations of MM approach. अब जो theory पढ़ा ही नहीं वो इसको attempt भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि MM approach क्या होता है उसको पता होने के लिए उसको बुक पढ़ना ही पड़ेगा. Now 53 was of short term sources of finance. कोई नहीं भी पढ़ा तो भी लिख ही सकता है, but
इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो उसके लिए थ्योरी पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 7 विच इज़ अगेन ऑफ 12 मार्क्स। ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, ठीक है, यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है। सो 54 to 56 वाज ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने आया था, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, ये सारा निकालने के बाद WACC निकालना था। सो दिस वाज ऑफ 2 + 2 + 2 दैट इज 6 मार्क्स। नाउ 57 to 59 ये बहुत ईजी वाला क्वेश्चन आया था। ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना था, फाइनेंशियल लिवरेज निकालना था और कंबाइंड लिवरेज निकालना था। दिस वाज आल्सो ऑफ 3 questions, 2 marks each. So both these questions together constitutes 12 marks of objective based question, that is section number 7. Now the last question, that is the last section number 8, is of short notes which is of 12 marks and there will be 3 questions of 4 marks each. मतलब इसमें भी वैसे ही था, मॉडल एग्जामिनेशन में बस 3 ही क्वेश्चन दिया था, बट मेन वाले एग्जाम में 4 क्वेश्चन था और उसमें से कोई 3 अटेम्प्ट करना था। सो मेन वाले एग्जाम में इट वॉज रिलेटिवली ईजी टू अटेम्प्ट द पेपर। सो मॉडल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नंबर 60 वॉज ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, देन सिग्निफिकेंस ऑफ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एंड देन इम्पॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। सो दीज वेर ऑफ शॉर्ट नोट्स। आई होप दिस पेपर पैटर्न इज़ क्लियर। मतलब सब सारा कुछ ना MCQ हो गया है, बस कैलकुलेशन वाला पार्ट में ही फोकस करो और पूरा फॉर्मेट बना के प्रिपरेशन मत करो, क्योंकि बस कैलकुलेशन का ही काम है। सो दिस वाज द पेपर ऑफ कॉस्ट FM। आई होप इट वाज हेल्पफुल। स्टडी वेल, बाय।